Hello and welcome everyone. Today I am going to start a new lecture series in subject Metal Forming Analysis MFA, which comes in 7th semester B Mechanical Engineering as an elective subject. The subject code is 2171913, and I will upload lectures on Tuesday and Wednesday for metal forming analysis. So first let us discuss about its GTU syllabus. So here, as you can see, the subject is offered in 7th semester and the total lecture hours are 3. I will take 2 lectures and one lecture will be taken by Harin sir, and the total credit is 5 and 2 hours are of practical and total marks of subject are 150. So the content which I am going to cover is from forging process. So basically in forging process there are classification, then metal flow in forging, analysis of plane strain compression, analysis of compression of circular disc with slab method. Then there is extrusion processes, which we will discuss its calculation for slab method, then slip line method, upper bound method, defects in extrusion, direct and indirect extrusion, then wire drawing processes और उसके डिफेक्ट्स, फिर मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, वायर ड्राइंग, लोड कैलकुलेशन। जो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है 7th नंबर चैप्टर रोलिंग प्रोसेस, उसमें क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मिल, एनालिसिस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप और शीट रोलिंग प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ रोल सेपरेशन फोर्स, टॉर्क एंड पावर, एंगल ऑफ बीट, then maximum reduction in rolling, rolling defects, rolling flattening and roll chamber. Then 8th number chapter is sheet metal forming processes, in which we will study various sheet metal operations such as blanking and punching operations, compound and progressive dies, nesting, clearance, force in blanking, blanking of plates, bendability, spring back, bending force, bending moment for real material, then stress and strain in bending, stress in deep drawing, drawability, drawing load, and anisotropy in sheet metal. And the last 9 number chapter is introduction to forming limit diagram, friction and lubrication in forming processes. So in today's lecture, I will introduce about the forging process. So let us start. So first is introduction to forging processes. So first of all, what is forging? Forging is a process of forming metal by application of intermittent blows or pressure to individual वर्कपीस। यानी कि कोई भी वर्कपीस मेटल पार्ट है, उसको कोई भी फॉर्म और शेप देना है तो उसके लिए इंटरमीडिएट ब्लोज और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को फोर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। It is process of plastically deforming metal or alloy to specific shape by applying compressive force. Compressive force अप्लाई करके कोई भी मेटल है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना फोर्जिंग प्रोसेस है। यहाँ पर फोर्जिंग की एक फिगर दी हुई है, एक ब्लूम है या फिर बिलेट है और यहाँ पर डाई है, उसके थ्रू कंप्रेस करके जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरी फिगर भी दी हुई है फोर्जिंग की। नाउ द अनलाइक रोलिंग, द products of forging process are not continuous flowing mass but in discrete pieces, and specifically
stated otherwise, forging is understood as hot working process, but cold forging is also sometimes used. Mostly hot forging is used, but sometimes cold forging is also preferred. Now let us discuss the various characteristics of forging process. So forging are generally produced from rolled stock like blooms or billets or rods. For exponentially large forging, ingots may be used without rolling. फोर्जिंग के अंदर ब्लूम्स बिलेट्स या रॉड या फिर इनगोट्स यूज होते. फिर फोर्जिंग रिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल बाय ब्रेकिंग अप लार्ज ग्रेन फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग अप कैविटीज दैट मे बी प्रीसेट. इट रिफाइंस द स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है बाय ब्रेकिंग लार्ज ग्रेन फॉर्मेशन को ब्रेक करके. ब्रेक फोर्जिंग लाइक अदर मेटल वर्किंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर एंड ग्रेन साइज. फोर्जिंग से क्या होगा कि जो भी माइक्रोस्ट्रक्चर है वो उसमें और ग्रेन साइज में चेंजेस आएंगे. व्हेन मेटल इज मेड टू फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, the metal will have fibrous structure with grains intertwined with the elongated slab and other inclusion in metal. The metal has highest strength and toughness in the direction of fiber. जो भी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मेटल फ्लो होगा, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वहां पर उस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगी. Property at the right angle to the fiber line will be those of sound casting. जो भी right angle lines होगी वो sound casting की होगी. By controlling the fiber flow line in forging, it is possible to make metal strong in any desired direction. कंटिन्यूस फाइबर फ्लो लाइन से जो भी फोर्ज्ड पार्ट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. To get maximum advantage of direction property of forging, it is essential that proper choice of direction of application of pressure is made. जो फोर्जिंग का है वो मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए जो डायरेक्शन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. The control of direction of fiber flow line is particularly important where shock and fatigue loading is encountered. In static loading, it is not very crucial. But the optimum strength quality depends produced by forging helps improve strength to weight ratio of component permitting weight reduction. ऑप्टिमम स्ट्रेंथ क्वालिटी जो फोर्जिंग में प्रोड्यूस तब होगी वो उसकी वजह से स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इम्प्रूव होगा जो भी कंपोनेंट है और उसका वेट रिडक्शन किया जा सकता है. सो ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स थी. नेक्स्ट जो भी कंपैरिजन यहाँ पर दी हुई है कि जो फोर्ज पार्ट है और कास्ट पार्ट है उन दोनों में कंपैरिजन क्या है. जो भी फोर्जिंग है, इन फोर्जिंग लार्ज ग्रेन्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर साइज which gives better mechanical properties to part, whereas in cast part the grains are of much larger in size. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी कास्ट पार्ट है और फोर्ज पार्ट है दोनों की कंपैरिजन दी हुई है. जो भी एक दूसरा एग्जांपल है कि जो भी यहाँ पर ग्रेन्स लाइंस है वो फोर्जिंग में यूनिफॉर्म है और यहाँ पर कास्टिंग में नॉन यूनिफॉर्म है. ग्रेन साइज है, ग्रेन्स आर ऑफ मच लार्जर साइज, यहाँ पर ग्रेन साइज जो है वो लार्ज है और यहाँ पर यूनिफॉर्म है. द फ्लो ऑफ ग्रेन इन फोर्जिंग गिव्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी टू पार्ट विच कैन बी यूटिलाइज टू एडवांटेज बाय प्रॉपरली अलाइनिंग द ग्रेन फ्लो डायरेक्शन. जो भी फ्लो ऑफ ग्रेन है फोर्जिंग में उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से वो एडवांटेजेस होता है कि जो भी
ग्रेन फ्लो डायरेक्शन है वो अलाइन होती है। फिर जो क्रैक्स और ब्लो होल्स है वो प्रीसेट प्रेजेंट इन इनपुट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर इन फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग में अगर कोई क्रैक्स एंड होल्स है तो वो फोर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा वो सॉल्व किए जा सकते हैं, वो वेल्ड हो जाएंगे दोनों पार्ट। फोर्ज पार्ट आर एबल टू एब्जॉर्ब मच हायर शॉक देन कास्टिंग। यहाँ पर ग्रेन साइज यूनिफॉर्म है फोर्जिंग में, और जबकि कास्टिंग में जो ग्रेन साइज है वो ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा वीक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, जो भी बिलेट होगा उसकी ग्रेन लाइन कैसी होगी, फिर जो कास्ट पार्ट है उसकी ग्रेन लाइन, और जो भी फोर्ज पार्ट है उसकी ग्रेन लाइंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हीटिंग द मेटल फॉर फोर्जिंग। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि फिगर में जो भी बिलेट्स ब्लूम्स यहाँ पर दिए हुए ब्लूम जो अप टू 500 mm आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, यहाँ पर ये ब्लूम है और ये बिलेट है अप टू 180 mm स्क्वायर, और जबकि स्लैब अप टू 3000 mm वाइड एंड अप टू 320 mm थिक। सो इनमें से कोई भी पीस जो भी रॉ मटेरियल होगा वो स्लैब बिलेट या ब्लूम के फॉर्म में होगा। फोर्जिंग के लिए रॉ मटेरियल इज कट टू साइज रिक्वायर्ड। सबसे पहले जो भी साइज रिक्वायर होगी उसके लिए हम कट करेंगे। टू प्रोड्यूस गिवन वर्क पीस आर हीटेड टू करेक्ट हॉट वर्किंग टेम्परेचर इन फर्नेस लोकेटेड नियर फोर्जिंग स्टेशन। Large variety of furnace available for heating the workpiece for forging range from simple open forge fire to refractory lined continuous or batch type furnace with precise atmosphere and temperature control. Different furnaces are used for different applications. While heating workpiece for forging, care should be taken to see that the scaling, decarburization, overheating, burning and rupturing of metal are prevented. जो भी हीटिंग प्रोसेस हम करते हैं वर्कपीस की, उसके अंदर जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है वो है स्केलिंग, डीकार्बोराइजेशन, ओवरहीटिंग, बर्निंग एंड रप्चरिंग ऑफ मेटल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कि कोई भी बिलेट है तो उसको बार के फॉर्म में और रोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर जो भी ब्लूम है कोई भी स्ट्रक्चरल शेप हम दे सकते हैं उसको हीटिंग करने के बाद, जो भी प्रॉपर डाई में फॉर्म करके। और जो स्लैब है वो कॉयल या फिर प्लेट बनाने के लिए यूज होता है। अगर हीटिंग करने के बाद एनी स्केल फॉर्म ड्यूरिंग हीटिंग इज अनडिजायरेबल, कोई भी अगर स्केल फॉर्म होता है तो वो अनडिजायरेबल है। अनलेस इट इज प्रिवेंटेड और रिमूव्ड बिफोर फोर्जिंग इट वुड बी एम्बेडेड इन वर्कपीस कॉजिंग अ वीकनेस। अगर वो रह जाता है उसके अंदर और वो रिमूव नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर वीकनेस रह जाएगी, अगर स्केल वहाँ पर रहेगा तो। स्केल कॉज रैपिड डाई वियर, उसकी वजह से जो भी डाई है उसका भी रैपिड वियर होगा। रैपिड हीटिंग एंड इमीडिएट फोर्जिंग would prevent scaling and decarburization but may cause rupturing due to temperature stresses। अगर रैपिडली हीट करेंगे या फिर इमीडिएट फोर्जिंग करेंगे तो उसकी वजह से स्केलिंग और डीकार्बोराइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, बट मे कॉज रप्चर ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेस। अभी टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो भी टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल हीटिंग इज मोस्ट डिजायरेबल, दैट्स वाई जो भी कंपोनेंट है उसका यूनिफॉर्म और ग्रेजुअल हीटिंग वो मोस्ट डिजायरेबल है। कोल, ऑयल और गैस आर जनरली यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड। कोल यूज होता है, ऑयल या फिर गैस फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, या फिर इंडक्शन हीटिंग भी यूज किया जा सकता है। अभी फॉर इंडक्शन हीटिंग
is very useful in preventing scaling, decarburization, burning or rupture, but special coils are required for different shape and size. जो इंडक्शन हीटिंग है उसका एडवांटेज ये है कि जो भी सारे डिसएडवांटेज है जैसे कि स्केलिंग हो गया, डिकार्बोराइजेशन, बर्निंग, रप्चर, इन सबको हम कम कर सकते हैं, बट उसके लिए जो स्पेसिफिक अगर कोई शेप चेंजेस है जैसे कि बिलेट है, ब्लूम है, स्लैब है, तो उसके लिए डिफरेंट शेप की कॉइल्स हमको चाहिए होगी. फॉर सेटिस्फैक्ट्री फोर्जिंग वर्कपीस मस्ट बी हीटेड टू करेक्ट फोर्जिंग टेम्परेचर. और अगर सेटिस्फैक्ट्री फोर्जिंग ऑपरेशन करना है तो जो भी वर्कपीस है उसको करेक्ट फोर्जिंग टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा. जो भी डिफरेंट फोर्जिंग टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो डिफरेंट फोर्जिंग टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है. और यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है कि ऑप्टिमम फोर्जिंग टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड अलॉयज एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशन. यहाँ पर जो सपोज माइल्ड स्टील है तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग 1300 से एंडिंग 800 तक का है. सेम वे सपोज हाई कार्बन स्टील का देखें तो जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो 1150 टू 825 है. वैसे एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, ये फिर रॉट आयन, जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है एल्यूमिनियम का वो कम है और एंडिंग टेम्परेचर भी कम है. और यहाँ पर जो हाईएस्ट स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो एमएस के लिए है, ठीक है. और एंडिंग टेम्परेचर जो हाईएस्ट है वो रॉट आयन के लिए है. सो एज सच ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, डेटा है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको समझना जरूरी है कि जो भी फोर्जिंग प्रोसेस है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग टेम्परेचर ये इस प्रॉपर रेंज में होना चाहिए, तभी फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है forging materials. So in forging materials, the basic property of material that makes it suitable for forging is ductility. Ductility की वजह से हम फोर्ज कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट है, या फिर कहे तो प्रॉपर्टी टू विस्टैंड सब्सटेंशिएट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर. डक्टिलिटी या फिर जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की टू विस्टैंड सब्सटेंशियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर. उसके अलावा जो भी क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यील्ड स्ट्रेंथ है, मेल्टिंग पॉइंट है, ड्राई फ्रिक्शन, स्ट्रेन रेट, ये डक्टिलिटी के अलावा ये सारी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी फोर्ज्ड और इट्स फोर्जेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट. जो भी क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यील्ड स्ट्रेंथ है, मेल्टिंग पॉइंट है, ड्राई फ्रिक्शन, स्ट्रेन रेट, इन सब पे भी जो मटेरियल की वो एबिलिटी है, फोर्जिंग की एबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है. नेक्स्ट जो कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल दैट आर हाईली forgeable are alloys of aluminum, magnesium and copper, low carbon and low alloy steel. These are the common engineering materials: aluminum, magnesium and copper, low carbon and low alloy steels. Then there is stainless steel and nickel alloy are somewhat difficult to forge, and the titanium and titanium alloy, then iron and cobalt based super alloy and tungsten or beryllium alloys are much more difficult to forge. ये सारे मटेरियल डिफिकल्ट है, फोर्जिंग करना इनमें थोड़ा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम टूल्स यूज्ड इन फोर्जिंग टूल्स जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स है फोर्जिंग के लिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इम्पोर्टेंट टूल है दैट इज हैमर. जो हैमर है वो प्रिंसिपल टूल है स्मिथ जो होता है फॉर स्ट्राइकिंग पर्पस. भी हैमर के अंदर भी दो टाइप्स है बेसिकली, एक हैंड हैमर होता है और एक स्लेज हैमर होता है. हैंड हैमर जो वो यूज होता है वो स्मिथ
use himself while his assistant uses sledgehammer or the hammerman. Hammer are usually made of cast or forged steel with face hardened and tempered but material around the eye left soft. जो भी आई पोर्शन का मटेरियल होगा वो सॉफ्ट रखा जाएगा और जो भी सरफेस का मटेरियल है वो हार्डन किया जाएगा जो भी फेस पोर्शन का. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैमर यूज्ड इज बॉल पिन हैमर. जो बॉल पिन हैमर है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है. This hammer has a mass of about 1 to 1.5 kg and handle about 350 mm long. Then straight pin and cross pin hammers are also used in operation like drawing out. जो भी कॉमन डिजाइन है स्लेज हैमर की वो यहाँ पर दी हुई है जैसे कि डबल फेस्ड स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन. द डबल फेस्ड हैमर इज मोस्ट कॉमन बट other two are designed also used. The mass of sledgehammer for ordinary work is 4 to 5 kg and for heavy work it is 7 to 9 kg. The length of handle varies from 900 to 1000 mm. नेक्स्ट जो कॉमनली यूज होता है वो है एनविल. एनविल इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द वर्कपीस ड्यूरिंग फोर्जिंग. वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है. कॉमन शेप ऑफ एनविल यहाँ पर दिया गया है. द बॉडी ऑफ एनविल इज मेड ऑफ रॉट आयरन और माइल्ड स्टील विथ फेस ऑफ हाई कार्बन स्टील welded on top and hardened. The brake used for bending work is soft like body. The square holes are provided at the other end of the anvil and are taking the stems of bottom tools. जो भी एनविल है उसको प्लेस किया जाता है वुडन और कास्ट आयरन फ्रेम के ऊपर टू ब्रिंग इट टू कन्वीनियंट वर्किंग हाइट ऑफ अबाउट 600 mm. नेक्स्ट जो टूल है वो है वेरियस टंग्स. द टंग्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज आर यूज्ड टू होल्ड वर्कपीस ड्यूरिंग फोर्जिंग. अगर वर्कपीस जो हॉट कंडीशन में है उसको होल्ड करने के लिए वेरियस टंग्स यूज होगी या फिर कोल्ड कंडीशन में फिर भी उसको हम ग्रिप करके फिर उसको हैमर करेंगे. सम ऑफ द कॉमन शेप्स आर गिवन हियर. ऑल टंग्स शुड फिट प्रॉपरली इनटू वर्कपीस दे होल्ड एंड should have contact through length of the jaw. यहाँ पर 4 टाइप्स दिए हुए हैं फ्लैट और स्क्वायर, राउंड नोज, देन होलो नोज एंड एंगल और वी शेप नोज. नेक्स्ट जो है वो है चीसल एंड गेजेस. The chisel may be hot or cold chisel depending upon whether they are used with hot or cold workpiece. चीसल है वो 2 पार्ट में बनाई जाती है. दे आर मेड इन पेयर्स और रिफर्ड एज टॉप चीसल एंड बॉटम चीसल. टॉप चीसल इज यूज्ड बाय स्मिथ while bottom chisel is fixed to square hole on face of anvil with job in between. जॉब को इन बिटवीन में रखा जाता है और एनविल के अंदर बॉटम पोर्शन फिट किया जाता है एज शोन इन figure over here. There is cold chisel, hot chisel and gauges. Gauge is different. G-A-U-G. Here it is G-O-U-G. That is similar to gauges are similar to chisel. The top chisel are made with eye and fitted with handle like hammer, or portion of body may be left round and mild steel rod bend around it to make a handle. एक हैमर के फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है. जो भी टॉप पोर्शन है वो हैमर के फॉर्म में बनाया जाएगा. द फॉर्मर अरेंजमेंट इज प्रिफर्ड फॉर accurate work because the shaft enables the chisel to properly locate and hand in position during forging operation. The later arrangement is more useful for rough work because the chisel is being loose to some extent and shock of
blow is not carried to hand. The cold chisel is forged thick in body for proper strength. Its cutting edge is hardened and tempered, and the body left soft. The next is next tools used in forging is fullers. Fullers are blunt tools with semicircle edge. Semicircle फॉर्म में उसकी एज होगी. They are made as pair tools and specified by size of grooves they are able to make. They are used in necking tools, preparatory for setting down or drawing for finishing corners. नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉर्नर्स को फिनिश करने के लिए, और यहाँ पर फिर जो भी दो टाइप्स है, एक शोल्डरिंग फुलर और एक प्लेन फुलर. जो शोल्डरिंग फुलर्स है आर मेड विथ होलो राउंड एजेस फॉर सिलिंड्रिकल वर्क. नेक्स्ट जो है वो है फ्लैटनर्स और सेट हैमर्स. ये आपने देखे होंगे, फ्लैटनर्स और सेट हैमर्स आर यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग एंड फिनिशिंग द फ्लैट सरफेस. दे हैव फ्लैट फेसेस अबाउट 75 mm square and they are made round or rectangular shape. Another tool is swags. Swags are another important class of paired tools that are used for finishing right section like cylinder, square or hexagonal section. That type of sections are finished using swag. जैसे कि सिलिंड्रिकल या फिर स्क्वायर सेक्शन है, हेक्सागोनल है. दे में अल्सो बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग कॉलर्स और प्रोजेक्शंस ऑन फोर्जिंग. नेक्स्ट जो है वो है स्वैग ब्लॉक्स. यहाँ पर ये स्वैग ब्लॉक दिया हुआ है. स्वैग ब्लॉक्स इनकॉर्पोरेट्स सेवरल शेप्स इन डिफरेंट साइज ऑन इट्स एज and a number of holes of different shapes and size on its face. यहाँ पर फेस के साइड पे आप देख सकते हो, ये जो फेस के साइड पे यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स of different size and shape are given, while on the side edges here the different shapes are given. It is about 100 to 200 mm thick and 500 mm square. It is used on its edge to finish different shapes in conjunction with the corresponding top tool. The holes on face are used for holding bar while bending और upsetting. जिससे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे बिल्डिंग बन रही हो तो वहां पर जो मेटल रॉड्स है उनको बेंड करने के लिए इस टाइप के टूल्स आपने वहां पर देखा होगा. ये स्वैगिंग ब्लॉक वहां पर देखा होगा कि जिसके अंदर फिक्स करके कोई भी मेटल रॉड है उसको बेंड किया जा सकता है या फिर डिजायर्ड शेप हम उसको देख सकते हैं. और जो लास्ट टूल है वो है punches and drifts. There is round punch, square punch and drifts. Punches and drifts are usually made to make holes in work at forging heat. मतलब हॉट जो फोर्ज्ड पार्ट है उसके अंदर होल्स क्रिएट करने के लिए यूज होगा. सो ये सारे थे टूल्स यूज्ड इन forging, and this is it for today's lecture. So today we discussed about the various tools used in forging, then forging materials and various characteristics, comparison between forged part and cast part, and introduction to forging. So thank you very much for listening me carefully. So have a nice day. We will discuss in the next lecture the various forging operation. Thank you.